देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी शरीफ। अमाल का दारोमदार नियत पर है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शजरकारी के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में इसका ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन असातिज़ा से हर माह 25 रुपये, सिविल सर्विस अहदेदारों से 100 रुपये, अरकान असेंबली, पार्लियामेंट और कौंसिल से फ़ीकस 500 रुपये, जायदाद के रजिस्ट्रेशन के वक्त हर एक के पास से 50 रुपये, स्कूल कॉलेजों में दाखिले के वक्त तलबा से 5 रुपये, 10, 15 और 25 रुपये लेने का फैसला किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हर माह रकम वसूल की जाएगी। इस ग्रीन फंड में जमा होने वाली रकम से रियासत भर में पौधे लगाए जाएंगे। బ్రెజిల్ అనే దేశంలో జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళు అమెజాన్ అడవులు దాన్ని పరిరక్షించుకోవడం, దానిలో కొంత రెయిన్ ద్వారా వచ్చే ఇబ్బందులను అధిగమించడం కోసం వాళ్ళు కూడా ఒక గొప్ప ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. యుఎన్ఓ వాళ్ళు ఇవన్నీ పరిశీలన చేసిన తర్వాత మన తెలంగాణ హరితారం ప్రోగ్రామ్ కూడా గుర్తించి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పి మనకు కితాబ్ ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. అది మనందరం కూడా సంతోషించదగ్గ విషయం అని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, దీనిలో 2-3 విషయాలు మనవి చేసి గౌరవ సభ్యులు ప్రస్తావించిన అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇక్కడ ఒక విషయం గౌరవ సభ్యుల దృష్టికి తేవటం నా యొక్క బాధ్యత అధ్యక్ష. ఎందుకంటే కొత్త సభ్యులు ఉన్నారు, రకరకాల సభ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి విషయం అందరికీ తెలియాల్సిన బాధ్యత కూడా మా మీదనే ఉంటుంది, ప్రభుత్వం మీద. దీంట్లో భాగంగా అధ్యక్ష, మొట్టమొదట నిధుల విషయం నేను మళ్ళీ వస్తా అధ్యక్ష. ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో 2015లోనే ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్తలోనే ఒక నిర్దిష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికతో మనం ముందుకు సాగాలని ఆలోచన చేసి రాబోయే సంవత్సరాలలో 2 రకాలుగా, అంటే మల్టీ ప్రాంగ్డ్ స్ట్రాటజీ అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఇది సభ్యులందరికీ తెలిస్తే మంచిగా ఉంటుంది గౌరవ సభ్యులకు. ఈ సబ్జెక్టు నాకు కూడా అప్పట్లో తెలిసేది కాదు. డెప్త్కు పోతున్న కొద్దికి, నిపుణులు చెప్తున్న కొద్దికి అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూ ఉంటాం అధ్యక్ష. దీని సిస్టమ్ ఏంటంటే అధ్యక్ష, మనం సోషల్ ఫారెస్ట్ ఎంత పెట్టినా, ఎంత పెంచినా ఒక 10-20 ఎకరాల అడవికి సమానం కాదు అధ్యక్ష. ఫారెస్ట్ అంటే దానిలో ఉండే ఎకోసిస్టమ్, దానిలో ఉండే బయోడైవర్సిటీ, దాని ద్వారా సంక్రమించే అనేక రకాల అద్భుతాలు మనకు రావు అధ్యక్ష. మనందరికి గుర్తుంటుంది అధ్యక్ష, చిన్నప్పుడు మన ఊళ్ళలో ఎవరైనా వచ్చి గండిపేట, మన హైదరాబాద్లో ఒక 15 రోజులు 20 రోజులు ఉండేస్తే మనిషి తెల్లగాయటోడు అధ్యక్ష. ఊళ్ళకి వాపసు రాగానే తెల్ల కనబడితే వీని గండిపేట నీళ్ళు పడ్డాయి రాందరు. ఆ గండిపేట నీళ్ళు అధ్యక్ష మన వికారాబాద్ అనంతగిరి అడవులలో ఉండే ఓషధులు ఆ వనాల ద్వారా ప్రవహించి మన ఈ 2 ప్రాజెక్టులలోకి వస్తుండే, హిమాయత్ సాగర్ అండ్ ఉస్మాన్ సాగర్లోకి. అంత శ్రేష్టమైన నీళ్ళు మనకు లభించేది అధ్యక్ష. అంటే వనాలకు ఉన్నటువంటి, అందులో పెరిగేటువంటి ప్రకృతి సిద్ధంగా పెరిగేటువంటి ఓషధులకు ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి అధ్యక్ష. సో మనం కూడా ఇది అన్ని రకాలుగా మల్టీ ప్రాంగ్డ్, ఏదో ఒక ఏకముఖంగా చెట్టు పెట్టమని కాకుండా ఎట్లా పెట్టాలి, దీనికి అవలంబించాల్సిన పద్ధతి ఏంది అని ఆలోచించినప్పుడు మన అదృష్టం కొద్ది అధ్యక్ష, మన గతంలో వారసత్వంలో తెలంగాణ సంక్రమించినటువంటి ఆస్తి 2,75,00,000 ఎకరాలు మన తెలంగాణ భూభాగం అధ్యక్ష. ఒక దాదాపు 3,100 కిలోమీటర్ల చుట్టుకొలతతోని, పెరిమీటర్ అంటారు దేశ దాన్ని, చుట్టుకొలతతోని మన తెలంగాణ యొక్క ల్యాండ్ మాస్
మనకు వచ్చినటువంటి రాష్ట్రం కొద్దిగా పెద్దగా ఉండే, సరే ఆంధ్ర వాళ్ళు కొంత 7 మండలాలు తీసుకున్నారు పోలవరం కోసమని. ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి 1,12,000 పైచిలుకు చదరపు కిలోమీటర్లు మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈరోజు తెలంగాణ యొక్క భూ విస్తీర్ణం, ద ల్యాండ్ మాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ అబౌట్ 2,75,00,000 సార్. ఈ 2,75,00,000 ఎకరా. कायद मुखरना मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली में औकाफी जायदादों के इस्तेहसाल और इन पर सरकारी इदारों और गैर मजाज काबिजीन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से वो मुसलसल ऐवान में ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत औकाफी मसाइल हल करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आती। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि औकाफी जायदादों की तहकीकात और इसकी बाजियाबी के लिए एक कमीशन कायम किया जाए या फिर बरसरे खिदमत हाई कोर्ट के जज के ज़रिए इसकी जामे तहकीकात की जाए। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ वेस्ट जोन से मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। जानना चाहूँगा कि ये जो नोट दिया गया था, इस नोट के पेज नंबर 3 पर पूरी तफसीलात दी गई हैं कि कितना पैसा सर्फ हुआ 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 2019-20, 2020-21 और फिर 2021 व 22 टिल 24 सितंबर तक, और मुकम्मिल इसमें फिगर दिया गया है 6,555.975। इसके लिए भी मैं मुबारकबादी देता हूं कि इतना हुआ। फिर पेज नंबर 4 पर मेजर अचीवमेंट्स बयान किए गए, जिसमें कितने लाख एकड़ फॉरेस्ट का भी तफसीलात पूरे दिए गए। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पूरा है इस पेपर में। लेकिन मेजर अचीवमेंट्स के बाद 7th पॉइंट में यह कहा गया कि एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट हैज इंक्रीज्ड बाय 3.67% बिटवीन 2014 to 2017. Sir, in this paper, and I was hearing to the speech of Honorable Minister Saab and also Honorable Chief Minister Saab, because I'm not well versed and I do not really completely follow Telugu language. It was being translated. I might have not heard it. If I have not heard it, I would like to be corrected. At the same time, my question through you is that, sir, it has been said that 3.67 between 2014 and 17 has increased. Forest cover has increased. So I want to know what is the increase of forest cover from 2017 to 2021. Notice of this house, and also to you, sir, in Bahadurpura constituency, we have a zoo, sir. We have a zoo. And the extent of the zoo is 380 acres, sir. Sir, almost 1,500 species of birds are there. Mammals and reptiles are there. Tiger is there, lion is there, and it is a 200-year-old, sir. Tank is there, Miralam also. And here in this book it says zero forest area. So I want to be corrected. Does the zoo come under forest cover area or not? Is it managed by forest department or not? Is the forest department responsible for zoo or not? If yes, then why has it not been mentioned here? So probably there might be some reason which I am not aware, but I would like to know the reason why it has not been mentioned here, sir. And also, sir, I would lastly request the Honorable Chief Minister Saab is that, sir, we need to create green cover के साथ मेरी आपसे दरखास्त ये है कि पार्क्स को भी हम अगर डेवलप करें तो इससे बहुत अच्छा होगा। आपने तफसीलात रखी है GHMC के बारे में, HMDA के बारे में, पुराने शहर में मैं ख़ास तौर से आपसे दरख्वास्त करूंगा स्पीकर साहब के ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से कि पार्क्स को डेवलप करने के लिए लीजिए और नए नए जो
एरियाज जो हम दे रहे हैं, जहां पे जैसे कि फार्मा सिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, या जो भी एक्सपेंशंस आ रहे हैं, इन एरियाज में आप पार्क के वास्ते एक एरिया को रखिए, वहां पे एलोकेट करिए, ताकि वहां पे पार्क डेवलप हो। जब वहां पे पॉपुलेशन आएगा, आबादी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या फ्लैट्स आएंगे, कुछ भी आएगा, तो वहां पर एक ग्रीन कवर भी होना चाहिए सर। शुक्रिया सर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना भर में गाड़ियों पर आयद करदा मुख्तलिफ चलानात को माफ़ कर देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फे सीफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने ऐवान में मौजूद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुखातिब होते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रियासत भर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों पर चलानात आयद किए गए। इन तमाम चलानात को मुआफ़ कर दिया जाए, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर गौर करेंगे। सिटी और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के लिए हम लोग मास्टर प्लान के से रिक्वेस्ट किए थे गवर्नमेंट को, जैसा कि चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहादुरपुरा है, याकुतपुरा है, चार मीनार है और कारवान है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी है। सर हमारे एमएलएस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं कि हमको रोड वाइंडिंग की ज़रूरत है, जितने ओल्ड सिटी में तंग गलियां हैं उसको ब्रॉड करने के लिए, और तकरीबन आरडीपी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बन चुका है। ख़ास तौर से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंजन बॉली टू वट्टेपल्ली, वट्टेपल्ली टू शास्त्रीपुरम एक रोड प्रपोज की है। इसी तरीके से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जगहों पे और मुकामात के ऊपर रोड वाइंडिंग के लिए प्रपोजल दिए हुए हैं। सर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ, जो परसों मिनिस्टर साहब शॉर्ट डिस्कशन के अंदर हमारे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कहे हैं कि हम सेकेंड फेज़ एसआरडीपी का इमीडिएटली बना रहे हैं। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप ये सारे रोड्स लेने लिए तो आपकी गवर्नमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारा भी नाम होता है, डेवलपमेंट आता है। आज तंग गलियों की तरफ से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं सर, एक आरटीसी बस नहीं जा सकती उस लेन्स के अंदर। हमारे वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो बाज़ारों के लोग हैं, जो रेसिडेंशियल लोग हैं, उन लोग खुद भी सेटिस्फाई है। हाँ साहब, इस रोडों को वाइडन करना चाहिए, इसलिए हमारे एरियाओं में डेवलपमेंट आता है। जब आवाम साथ दे रही है सर, तो हुकूमत का फ़र्ज़ बन जाता है कि आप इमीडिएटली ये सारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जितनी भी ओल्ड सिटी के अंदर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं नामा लिया हुआ हूँ, उस सारे नामों के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इमीडिएटली रोड वाइंडिंग का काम चालू करना चाहिए। शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आज असम्बली इजलास के दौरान कोत्तापेट मार्केट की मुंतकिली के मसले को उठाया। उन्होंने कहा कि मार्केट की मुंतकिली के लिए वहां की व्यापारियों को 6 हफ्ते की मोहलत दी जाए, ताकि वो अपने कारोबार की मुंतकिली को यकीनी बना सकें। इसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि कोत्तापेट मार्केट कुवेड़ा को मुंतकिल की जाए, लेकिन हुकाम इस मार्केट को बाटा सिंगारा मुंतकिल किया जा रहा है, जो वहां से 28 किलोमीटर दूर है, जिससे किसानों और फ्रूट मर्चेंट को काफ़ी नुकसान होगा। क्लियरिफिकेशन देना सर। और एक अहम बात यह है सर कि हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीन है सर, जैसा मेरे एरिया के अंदर हाउसिंग बोर्ड की एक ज़मीन है सर, उस जमीन को मैंने डबल बेडरूम के लिए प्रपोज किया था सर, मगर वो जमीन डबल बेडरूम के लिए नहीं दी गई है सर। तो एक और बात है सर, तो मैंने हाउसिंग बोर्ड के लिए ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेज के लिए सेम जमीन प्रपोज किया सर। अगर फर्ज करिए आप वो जमीन माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए अगर दे देते हैं सर, तो बेहतरीन बात होगी सर। तो मैं इसीलिए आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं सर, और 10% जियो में भी है सर माइनॉरिटीज को देने के लिए हाउसिंग के अंदर सर। तो आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया सर। तो मेरी
स्पीकर साहब आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से यह ख्वाहिश है कि इसको जरूर बजरूर करना चाहिए। यही हमारी पार्टी के जानिब से चंद सवालात थे साहब। मैं उम्मीद करता हूं मिनिस्टर साहब इसको क्लियरिफिकेशन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जॉइंट कमिश्नर वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की क़यादत में एडिशनल जॉइंट कमिश्नर वेस्ट जोन इकबाल सिद्दीकी और दीगर अहदेदारों पर मुश्तमिल 11 पुलिस की टीमों ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डन सर्च जामे तलाशी की। ये तलाशी बलराम गली, शिवलाल नगर और ऊपर धूलपेट इलाके में की गई। इस दौरान शराब और गांजा फरोख्त करने वालों की भी काउंसलिंग की गई और साथ ही साथ इलाके के 6 राउडी शीटर्स की भी काउंसलिंग की गई। इस मौके पर दस्तावेजात ना होने की वजह से जुमला 62 साइकिल मोटर्स, एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया गया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। आज मंगलहाट पुलिस स्टेशन धूलपेट में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज हम लोग कंडक्ट करें। इसमें मेरे साथ हमारे एडिशनल DCP सिद्दीकी, ACP नरेंद्र रेड्डी, SHO रणवीर रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर, उनका पूरा पुलिस स्टेशन स्टाफ, इसके अलावा जोनल स्टाफ भी काफ़ी इंस्पेक्टर्स ऐसा इसके साथ ही हम लोग ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आज करें। इसमें 500 के ऊपर घर हम लोग अपर धूलपेट, लोअर धूलपेट, शिवराम गली, शिवलाल नगर, बलराम गली, इन एरियाज़ में हाउस टू हाउस सर्च करें। कई घर में मतलब जो जितने भी रिसेंटली अरेस्ट हुए उनके फैमिली मेम्बर्स को पूरे आज काउंसलिंग भी दिया गया है कि इस तरह के धंधे में नहीं रहना। अगर से है तो आगे जाके उनको भी, फैमिली मेम्बर्स को भी प्रॉब्लम होगा, बच्चों को भी आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अभी तक तो फ़िलहाल वो लोग सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस तरह के धंधे में आगे जाके नहीं रहेंगे वो लोग। उसके अलावा लोकल यूथ से भी इंटरेक्ट करें, वो सब लोग खुश है इस तरह की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। रोज़ यहाँ से जितना गंदा नाम है यहाँ धूलपेट को, और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करे ऐसा कहीं इस तरह का सेल हो रहा, प्रोक्योरमेंट हो रहा, बाहर से कोई आके कर रहा काम। तो लोकल एरिया के यूथ भी मतलब इन्वॉल्व होके हमारे साथ ये लोग ये प्रोग्राम में करे, वो अच्छा सक्सेस हुआ। आगे जाके इस तरह का काम और भी हम लोग करेंगे। इधर नाइट और डे टाइम में भी हम लोग पिकेट और पुलिस टीम्स को यहाँ पे डिप्लॉय करें। वो लोग भी यहाँ पे निगरानी रखेंगे। 24/7 हमारा निगरानी रहेगा पुलिस का ये एरिया में। अगर से बाहर से आके कोई आदमी इधर खरीदने के लिए आया, बेचने के लिए आया, यहाँ का आदमी बाहर जाके खरीद के अंदर लेके आ रहा, तो डेफिनेटली अरेस्ट होगा और उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद में मीरचौक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस खुसूस में सर्कल इंस्पेक्टर असीबुल्ला ने कहा कि चंपापेट और मानसा गार्डन इलाके में ये मुहिम चलाई गई। उन्होंने बताया कि इस खुसूस में पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 10,500 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। रियल एस्टेट ताजिर के ड्राइवर की जानिब से 55 लाख रुपए उड़ा ले जाने की मुतल्लिका रियल एस्टेट ताजिर ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर बंजारा हिल्स पुलिस ने मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करते हुए ड्राइवर श्रीनिवास राव को गिरफ्तार करते हुए इस मसरूखा रकम बरामद कर ली। इस खुसूस में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ACP बंजारा हिल्स तफसीलात से आगाह किया। ఎవరైనా పోలీస్ వారి యొక్క సలహా ఏంటంటే ఒక క్యాష్ ఇంత క్యాష్ ఇస్తారు, ఇంకేదో జ్యువెలరీ వాల్యుబుల్స్ ఇస్తుంటారు. ఆ నమ్మకం ఉంటే బాగుంటుంటుంది, కానీ ఆయన యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలి, అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చాలా జరుగుతున్నాయి సంఘటనలు కూడా. తర్వాత పోలీసులకు ఆశ్రయిస్తుంటారు. అఫ్కోర్స్ పోలీస్ జాబ్ చేయగలుగుతాము, కానీ వాళ్ళంతా వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీ కానీ వాళ్ళ యొక్క పాస్ట్ హిస్టరీ కానీ కూడా చేసుకొని పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని మా యొక్క సూచన.
ఎస్ఓషా కానీ డిఐ కానీ రైలు స్టాఫ్ అందరినీ తగిన క్యాష్ రివార్డ్తో సత్కరిస్తారు. मिर्जा हामिद बेग सीनियर सहाफ़ी का आज सुबह मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो रोज़नामा मुंसिफ में सब एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। जनाब हामिद मिर्ज़ा तवील अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता थे। उन्होंने ETV के अलावा मुंसिफ TV के और दीगर इदारों में भी खिदमत अंजाम दी थीं। वो स्पोर्ट्स की खबरों को पेश करने में ख़ास महारत रखते थे। मरहूम इंतहाई मिलनसार शख्सियत के मालिक थे। नमाज जनाजा आज बरोज़े जुमा बाद नमाज असर मस्जिद सुबहान रूपलाल बाज़ार शाह अली बंडा रूबरू शाह गौस कैफ़े अदा की गई। यादगीर शहर में एक मीटिंग तलब की गई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब अजीमुद्दीन साहब मिनारिटी सदर बेंगलुरु, नज़ीर अहमद साहब सेक्रेटरी मिनारिटी बेंगलुरु ने शिरकत की। ज़िले के तमाम ताल्लुकात मुसलमानों की मस्जिदों और क़ब्रस्तान की बाउंड्री वॉल के मसाइल को दीगर मसाइल को पेश किया। इस मौके पर जनाब सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन रुकन बल्दिया गुरमिटकाल ने गुरमिटकाल की मस्जिदों और क़ब्रस्तानों के लिए मसाइल को हल कराने पर जोर दिया। इस मौके पर लायक हुसैन बादल, समदानी, गुलाम जिलानी, रियाज बादशाह दीगर मौजूद थे। में काफी दिनों से एक प्रॉब्लम भी है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो शादी खाने का, वो आज तक हम लोग हमेशा जो है ना राब्ता कर रहे हैं, वो शादी खाना आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग अपनी जानिब से हमारे गवर्नमेंट की जानिब से हम लोग चंदा करके जमीन खरीद के रखते हैं। अरे हम घर से चंदा करके जमीन की खरीद करें। जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जानिब जब टैक्स जो MLA साहब थे उनके जानिब से हम लोग एक 15 से 20 लाख से लेकर जो है ना बेसमेंट लेवल तक थोड़ा सा काम करें, आगे जो है ना उस काम को पूरा करें, ये मेरी आपसे अरमान गुजारिश है। साथ ही साथ हमारे गुरमिटकाल में काफी सारे मस्जिदें हैं जो खदीम निजाम जमाने के, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक हमारा वहाँ पे एक एरिया रहने की वजह से खदीम जमाने की जो है ना मस्जिदें हैं हमारे पास, तो वहाँ पे जो है ना काफी जो है ना कमी कोशी काफी है। वहाँ पे जो है ना मस्जिद के कंपाउंड्स हैं और मस्जिद के जो है ना यादें जो है ना काफी सारे जो है ना बहुत ही जो है ना खराब है, उसको भी जो है ना दुरुस्त करने के लिए जो है ना आपसे मैं गुजारिश करता हूँ वो जो है वो आपके मैं एप्लीकेशन इसमें जो है ना लिखा हूँ। साथ ही साथ जो है ना हमारे पास उर्दू मीडियम के काफी जो है ना स्कूल की जो है ना काफी परेशानी। एक स्कूल जो है ना मौलाना का अभी एक स्कूल हुआ है मौलाना अब्दुल आजाद जनाब, काफी अच्छा पैमाने पे जो है स्कूल चल रहा है। तो साथ ही साथ जो है ना उर्दू मीडियम और बॉयज स्कूल में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है 10 साल से। वहाँ पे हमारे पास आज तक मैथमेटिक्स का जो है ना टीचर नहीं है। एक लास्ट ईयर 2 साल पहले एक टीचर जो है ना अपॉइंटेड और ही ट्रांसफर कर चले गए, उसके ऊपर भी आप थोड़ा गौर करें, वो मेरी आपसे गुजारिश है। तो साथ ही साथ जो है ना हर जगह वक्फ बोर्ड पे भी काफी सारे हमारे मुद्दे हैं जहाँ पे वक्फ बोर्ड जो है ना हमारे को सही तरह से जो है ना सपोर्ट नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी जो है ना कमी कोशिश है जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं वो सही तरह से हमारे को मालूमात नहीं है। तो मैं आपसे इस स्टेज से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि भाई हमारे जो स्कीम्स हैं वो तमाम थोड़े लोगों को जो है ना इस चीज से जो है ना भी हमारे को जो है राबिता करें कि भाई हमारे माइनॉरिटीज में कौन सी स्कीम है। साथ साथ हम लोग एक NGO भी चलाते हैं जो उम्मीद वेलफेयर एसोसिएशन जो उम्मीद है, हम लोग उसके जरिए काफी सारे जो है ना जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे गरीब तबका हैं उनको जो है ना हम लोग अपग्रेड एजुकेशन के लिए भी जो है ना हम लोग जो है ना उनको जो है ना फंडिंग करके जो है ना डोनेट करके वो भी करते हैं। और उसके साथ ही साथ जो है ना हमारे जो बैकवर्ड जो पीछे जो स्कूल छोड़े हुए हैं उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं और पेंशन स्कीम्स को भी हम लोग जो है ना वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो समझा अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हम आपको सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे जो है ना बैकवर्ड एरिया है, अगर गवर्नमेंट की स्कीम भी अगर हमारे साथ जुड़ जाए। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, हम मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.